Namaste Vidya, Hamisha Kushro. So today I am Jeevan Bhavna from Faculty of Education and Methodology, and today I am going to take the sessions of Software Project Management, and name of my session is Estimation in Agile Project. So estimation तो हमें पता ही है कि हम सॉफ्टवेयर डेवलप करने से पहले ही हम कोशिश करते हैं कि हम एस्टिमेट लगा पाए कि सॉफ्टवेयर में कितना टाइम वगैरह लग सकता है। तो अजाइल के अंदर एस्टिमेशन का प्रोसेस थोड़ा सा अलग होता है। इसके अंदर हम लोग बेसिकली क्या यूज़ करते हैं, इसके अंदर हम स्टोरी पॉइंट एनालिसिस मेथड यूज़ करते हैं। तो जो भी आपका यूज़र की जो भी स्टोरी है, जैसे यूज़र क्या बनवाना चाहता है, उसके अंदर क्या फंक्शनैलिटी ऐड करवाना चाहता है, उसको आपने बोला यूज़र स्टोरी, जो काम यूज़र करवाना चाहता है उसको आप कितने स्टोरी पॉइंट्स देते हो। तो उसके भी अलग अलग मेथड्स हैं। फिर उन स्टोरी पॉइंट की मेथड्स के अकॉर्डिंग फिर हम ये देखते हैं कि उसको बनने में कितना टाइम लग सकता है, या सारे लोग किस स्टोरी पॉइंट पे एग्री कर रहे हैं, और उस स्टोरी पॉइंट के बेसिस पे हम लोगों का कैलकुलेशन और टाइम एस्टिमेट होता है। तो estimation in an agile project, it is very crucial to do agile estimation at different level. This is done for proper planning, management, and estimating the total efforts that we are going to use for implementing, testing, and delivering the desired project to the customer in terms of time within specified deadlines. With the lack of estimation in agile, there is no proper planning and management, which may end in delivering undesired product and thereby leaving the customer unsatisfied. So story point estimation are done in Agile using different techniques like planning, poker, bucket estimating, affinity mapping, etc. Different estimation templates at different level are used for this purpose, like Agile project plan, release plan, sprint plan, template, roadmap template, user story template, etc. तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, अलग अलग स्टोरी पॉइंट्स को कैलकुलेट करने के लिए हम अलग अलग मेथड्स और टेक्निक्स यूज करते हैं। हम उनमें से कुछ और इम्पोर्टेंट टेक्निक्स को आज हम लोग पढ़ेंगे। सो इसमें बेसिक एक ये है आपका कि देखिए, गिवन बिलो द थ्री मेन लेवल ऑफ अजाइल एस्टिमेशन। पहला कौन सा है, प्रोजेक्ट और प्रपोजल लेवल, इन विच इन it is the level in this one which uses the quick point function analysis during the initial phase of the project development. Release level, it includes assigning the story points to the user story that can help in defining the order for the user stories based on the priority, and can also help in deciding which story can be taken in current release and which can be taken later. So sprint level is one where the user stories are broken down into tasks and estimated hours are assigned to tasks according to their complexity. Here we also define the person responsible for the task along with the status of task. So पहला प्रोजेक्ट, तो ये तीन लेवल पे जब हम लोगों का एस्टिमेशन जब हो रहा है, तो उसमें पहले हम देखते हैं कि सॉफ्टवेयर के साइज का हम एस्टिमेट लगाने की कोशिश करते हैं फंक्शन पॉइंट एनालिसिस मेथड से। रिलीज लेवल पे हम उसको स्टोरी पॉइंट एनालिस डिसाइड करते हैं। फिर उसको स्टोरी पॉइंट के अकॉर्डिंग हम उसको क्या करते हैं, टास्क को ब्रेक करते हैं और उसमें कितना टाइम लग सकता है, ये चीज़ हम लोग पता लगाने की कोशिश करते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं। सो स्टोरी पॉइंट क्या होता है अजाइल के अंदर। Story points estimation is a comparatively analysis to roughly estimate the product backlog items with relative sizing. The team members for estimating user stories include product owner, scrum master, developer, tester and stakeholder. तो जब हम लोग इसके अंदर स्टोरी पॉइंट एस्टिमेट करते हैं तो उसके अंदर कौन लोग होते हैं, ये टीम होती है जिसके अंदर कौन होता है, प्रोडक्ट का ओनर होता है, स्क्रम मास्टर होता है, डेवलपर, टेस्टर और स्टेक होल्डर्स इसमें इंक्लूड रहते हैं। अब इसमें क्या है, ये अजाइल के अंदर कौन कौन सी कितनी एस्टिमेटिंग टेक्निक्स हम लोग यूज करते हैं, तो मेनली 7 एस्टिमेशन टेक्निक्स हम लोग जो यूज कर सकते हैं। So there are many techniques for doing the estimation in agile project. The main principle doing estimation include relative estimation, doing discussion to get more information of items whose estimation need to be done, and ensuring the commitment of the whole team towards the task assigned to them. तो उसमें से पहला हमारा टेक्निक कौन सी है, पहली हमारी टेक्निक है वो है प्लानिंग पोकर। इसके अंदर क्या होता है, इन दिस यहाँ पे हम लोग प्लानिंग पोकर कुछ कार्ड की वैल्यूज रखते हैं एक साथ। फिर उसके बाद क्या है, ये देखिए, फिर उसके बाद जब हम लोगों का सेशन स्टार्ट होता है तो प्रोडक्ट ओनर एंड कस्टमर रीड आउट द यूजर स्टोरी डिस्क्राइबिंग ऑल इट्स फीचर एंड कंपोनेंट्स। तो है ना, यहाँ पे क्या होता है, जब सेशन स्टार्ट होता है तो प्रोडक्ट का ओनर और का जो कस्टमर होता है वो पहले पढ़ते हैं कि यूजर्स
कि स्टोरी क्या है, मतलब यूजर क्या फंक्शनैलिटी, क्या चीज़ है जो यूजर चाह रहा है। फिर उसके अकॉर्डिंग स्टोरी रीड करी जाती है, फिर डिस्कशन होता है किसके बीच में, एस्टिमेटर के बीच में, प्रोडक्ट के ओनर्स और कस्टमर के बीच में। फिर और कोई भी अगर क्वेरी हो तो डाउट हो तो हम लोग प्रोडक्ट के ओनर से जो है कंफर्मेशन कर सकते हैं। फिर सारी डिस्कशन हो जाती है तो सारे एस्टिमेटर को हम लोग कहते हैं कि एक कार्ड सेलेक्ट करो, यूजर की स्टोरी को एस्टिमेट करने के लिए कोई कार्ड सेलेक्ट करो। फिर if all estimators given the same value, then it becomes then then the becomes the final estimate। तो वही क्यों जो सब लोग मिलके बैठ के जिस पे एग्री करते हैं वही क्या होती है, हमारी फाइनल एस्टिमेट होती है। Then if the values are different from estimators giving the highest and the lowest value, explain their opinion and why they choose this value until the consensus is achieved। फिर अगर हम किसी भी स्टोरी को अलग अलग स्टोरी पॉइंट देते हैं या हाईएस्ट या लोएस्ट वैल्यू को देते हैं तो वो अपने अपने एक्सप्लेनेशन हमें देने पड़ते हैं कि आपने ये हाईएस्ट वैल्यू क्यों चुनी है, ये लोएस्ट वैल्यू क्यों चुनी है। So with good technique where a small number of items to be estimated in a small team। तो अच्छी टेक्निक तब हो सकती है जब हमारे पास क्या हो, एस्टिमेट करने के लिए एक स्मॉल टीम अवेलेबल हो। एक है हम लोगों के पास टी शर्ट साइजिंग मेथड। इसके अंदर क्या होता है, जैसे टी शर्ट के अंदर साइजिंग होता है, साइज का कंपैरिजन होता है ना एक से दूसरे के अंदर कि स्मॉल कौन सी, मीडियम कौन सी, लार्ज कौन सी। तो वैसे ही कुछ प्रोसेस है जो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे फॉलो करते हैं। अब इसके अंदर क्या होता है, this is a perfect technique to give a rough estimate of the large backlog of item। The usefulness when quick and rough estimate need to be done। तो तब कब यूज होती है जब क्विक और रफ एस्टिमेट हम लोगों को चाहिए होता है। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, बाद में इसके अकॉर्डिंग लेटर दीज साइजेस कैन बी कन्वर्टेड इनटू नंबर्स एज पर रिक्वायरमेंट। तो उसके बाद में हम कंपेयर करते हैं कि ना ये जो यूजर ने स्टोरी बोली है तो उसके अकॉर्डिंग क्या है, ये स्मॉल स्टोरी है या एक्स्ट्रा लार्ज है या लार्ज है। फिर बाद में हम उसको क्या करते हैं, इसको साइज में कन्वर्ट करते हैं उस यूजर के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। फिर a relatively size, mostly medium, is decided after the mutual discussion and agreement of the team members or estimators। Then number of assigned to the items according to the relative size that is assigned to medium size। तो ये हम लोगों के पास एक और टेक्निक थी, इसका नाम क्या था, टी शर्ट साइजिंग। जैसे एक है हम लोगों के पास डॉट वोटिंग। सो डॉट वोटिंग का कंसेप्ट आप सिंपल वोटिंग टेक्निक से समझ सकते हो। जैसे आपका कहीं पे वोट डालने चाहते हो किसी को, कोई पर्टिकुलर पार्टी को, तो वहां पे क्या है, जिस पार्टी का सबसे ज्यादा वोट होते हैं वो विनर होता है। तो यहाँ पे भी क्या है, हम लोग क्या है 3 बार या 4 से 5 बार क्या है एक डॉट वोटिंग सेशन रखते हैं। सो वहां पे जिसके पास जैसे सबसे ज्यादा वोट होते हैं, तो जिसके पास जिस स्टोरी पॉइंट को सबसे ज्यादा डॉट मिलता है वही क्या होती है, वही स्टोरी प्रेफर की जाती है। सो दिस इज बेसिकली रैंकिंग मेथड टू डिस्क्राइब ऑर्डर ऑफ द प्रोडक्ट बैकलॉग फ्रॉम हाईएस्ट स्टोरी पॉइंट्स टू द लोएस्ट स्टोरी पॉइंट्स। This is done to select the most important stories which should be taken forward। To start this, post all the user stories along with their description। तो हम क्या करोगे, इस सेशन को स्टार्ट करने के लिए हम सारी की सारी यूजर स्टोरी को पोस्ट कर देंगे कि उनके डिस्क्रिप्शन के साथ में एक वॉल के ऊपर यूजिंग द येलो स्टिकर्स और इन अ वे दैट डिस्टिंग्विशेस देम फ्रॉम रिसीविंग द वोट्स। ठीक है, सो एक वॉल पे एक डिस्क्रिप्शन लगा के हम लोग येलो स्टिकर्स की मदद से हम लोग क्या करेंगे, उसका डिस्टिंग्विश करना चाहेंगे उसको। सो ऑल स्टेक होल्डर्स आर गिवन 4 to 5 डॉट्स। मतलब हर स्टेक होल्डर को 4 से 5 डॉट दिए जाते हैं। सो मोस्टली इन द फॉर्म ऑफ स्टिकर्स। और डॉट किसके फॉर्म में होते हैं, इन द फॉर्म ऑफ स्टिकर्स, पेन्स और मार्कर्स कैन ऑल्सो बी यूज टू मेक अ डॉट। ठीक है, all the stakeholders are asked to give their votes on the user stories that they prefer। तो हर स्टेक होल्डर को कहा जाता है कि वो अपना वोट दे कि वो कौन सी स्टोरीज यूजर स्टोरी को प्रेफर करना चाहते हैं। फिर द प्रोडक्ट ओनर orders the product backlog items from the most preferred with the most of the dots to the least preferred। तो वो वहां पे देखता है कि कौन सी यूजर स्टोरी को कितने पॉइंट मिल रहे हैं। तो सबसे ज्यादा जिसको मिलेंगे वो मोस्ट प्रेफर्ड होगा, सबसे कम जिसको मिलेंगे वो लीस्ट प्रेफर्ड होगा। So it may be a case where few stakeholders are unhappy with the order decided
तो ये कभी कभी होता है कि कुछ स्टेक होल्डर इससे खुश नहीं होते, क्योंकि जो ऑर्डर जो है डिसाइड किया गया, क्योंकि कभी कभी होता है कि जो स्टेक होल्डर को चाहिए होता है कि ये स्टोरी पॉइंट क्या है, पहली प्रायोरिटी पे है, तो कभी कभी वो चीज़ नहीं आ पाती। तो in this case, the user stories are divided into three groups after the discussion: high priority, low priority, and medium priority. So, high priority user stories are posted on the walls to receive votes. This is done until the final order is achieved with the agreement of all the stakeholders. तो ये प्रोसेस हाई प्रायोरिटी को आप पहले रखो, फिर उसके रिक्वायरमेंट को आप वहाँ रखो, फिर वापस डॉट पॉइंट करो। तो ये प्रोसेस कब तक चलता रहता है? जब तक सबकी सब चीज़ों का प्रायोरिटी डिसाइड नहीं कर जाती और सारे स्टेक होल्डर्स भी क्या करना चाहिए, एग्री करनी चाहिए। सो एक है हम लोगों का बकेट सिस्टम। अब बकेट सिस्टम क्या कहता है? एक टेक्निक है जहाँ पे वेयर लार्ज नंबर ऑफ आइटम्स आर टू बी एस्टिमेटेड बाय द लार्ज नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट, so it is faster and more responsible than planning paper। तो अलग अलग बकेट आप क्रिएट कर लेते हो, जिस नंबर ये वैल्यूज रेंज करती है, फिर उसको एक्सटेंड भी कर सकते हो जैसे आप चाहते हो। फिर ये बकेट कुछ नहीं होती, ये रिप्रेजेंट करती है द वैल्यूज अरेंज इन अ सीक्वेंशियल ऑन अ टेबल। So story points need to be placed within these where the estimator finds them suitable. So इसको और इसके अंदर हम स्टोरीज डालते हैं किसकी मदद से? वेयर द एस्टिमेटर फाइंड्स देम सुटेबल। सो तो इन पॉइंट्स के अंदर हम लोग क्या करते हैं, स्टोरीज डालते हैं, है ना? और जो यूजर जैसे चाहेगा उस अकॉर्डिंग हम इसके अंदर क्या करते हैं, स्टोरीज जो रहती है वो हम ऐड करते जाते हैं। जैसे अलग अलग रेंजिंग है, तो मुझे ना इस वैल्यू के अंदर मैं ये स्टोरी डाल सकती हूँ, इस वैल्यू के अंदर मैं ये स्टोरी डाल सकती हूँ। तो फिर यहाँ पे क्या होता है, द बकेट सीक्वेंस, और यहाँ पे आप चाहो तो बकेट सीक्वेंस को चेंज भी कर सकते हो। तो so items should be placed properly and no item can be placed between the buckets. If participant does not understand the product bucket them, or if the participant have finished up placing their stories, then the user stories can be transformed to the other participant. So एक ये एक मेथड है जिसको भी हम किस में यूज करते हैं, एस्टिमेशन के अंदर यूज करते हैं। सो मेन टेक्निक हम लोगों ने एस्टिमेशन की उसमें डिस्कस कर ली। अब हमारे नेक्स्ट टॉपिक के हम तरफ बढ़ते हैं, वो है स्टेजेस ऑफ एस्टिमेशन इन अजाइल प्रोजेक्ट। सो अजाइल प्रोजेक्ट के अंदर एस्टिमेशन जब हम करते हैं तो वहाँ पे भी बेसिकली 3 लेवल आते हैं: प्रोजेक्ट प्रपोजल लेवल, रिलीज लेवल एंड फ्रंट लेवल। तो ये जो लेवल्स है, ये जस्ट अभी अभी स्टार्टिंग के सेक्शन में हम लोगों ने देखे। स्टार्टिंग के सेशन में हमने ये 3 तरह के लेवल्स हम लोगों ने देखे थे। पहले प्रोजेक्ट प्रपोजल लेवल में क्या था कि हम लोग उसकी साइज कैलकुलेट करें। अब साइज भी हम किसकी मदद से कैलकुलेट करें? फंक्शन पॉइंट की मदद से कैलकुलेट करें। तो फंक्शन पॉइंट आपने काफ़ी बार पढ़ा होगा, फंक्शन पॉइंट एनालिसिस क्या होता है। सो अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। फंक्शन पॉइंट फंक्शन पॉइंट कैलकुलेशन के बाद में जो हमारा सेकंड जो लेवल आता है, कौन सा? रिलीज लेवल, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, स्टोरी पॉइंट एनालिसिस करते हैं। सो रिलीज लेवल estimation are done during the release planning. It is the next activity of the project level estimation. The prioritize assign requirements are taken from the product backlog, which is in the form of user stories. So the prioritized requirements are taken from the product backlog. तो प्रोडक्ट बैकलॉग से क्या है, वो रिक्वायरमेंट जो जिसकी जो प्रायोरिटी पे है उसको हम देखते हैं, जो किसकी मदद से डिसाइड की जाती है, यूजर स्टोरीज की फॉर्म में डिसाइड की जाती है। तो यूजर स्टोरीज आर एस्टिमेटेड इन टर्म्स ऑफ स्टोरी पॉइंट ड्यूरिंग द रिलीज प्लानिंग, which focuses on estimating the size of the software to be delivered for that release. In this way, no releases and total number of story points in each release is planned. So story point is basically represent the relative effort required to implement a feature or the functionality when compared to other feature. तो story point क्या represent करता है? It represent the relative effort required to implement a feature or the functionality when compared to other feature. So एक फीचर को आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो और क्या है, उसको कंपेयर करो उसके अदर फीचर से। So it is basically the sizing the product backlog item. So story point estimation भी क्या है,
किसके बेसिस पे करा जाता है, दो चीज़ों के बेसिस पे करा जाता है। एक तो कॉम्प्लेक्सिटी क्या है और एक्सपीरियंस एंड टेक्निकल स्किल क्या है आपके स्टाफ मेंबर्स की। सो अब हम इसमें कुछ स्टेप्स ये हैं कि यूजर के लिए यूजर स्टोरी को स्टोरी पॉइंट कैसे हम लोग असाइन कर सकते हैं। सो उसको ये कुछ पॉइंट्स हैं। उसके सिवा एक एग्जांपल है रिलीज लेवल एस्टिमेशन का। जैसे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम देखते हैं हमारी यूजर स्टोरी क्या है और यूजर स्टोरी आईडी क्या है और उसकी यूजर की स्टोरी क्या है और उसका एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया क्या हो सकता है। तो देखिए, एक US 101 एक यूजर है, तो उसका यूजर स्टोरी क्या है। एज ए यूजर आई वांट टू हैव अ लॉगिन स्क्रीन वेयर आई कैन लॉग इन इनटू द एप्लीकेशन यूजिंग माय क्रेडेंशियल यूजर नेम एंड पासवर्ड। और उस चीज का एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया क्या होगा, ए वैलिड यूजर शुड बी एबल टू सी द लॉगिन स्क्रीन एंड प्रोवाइड क्रेडेंशियल्स। आफ्टर लॉगिन यूजर क्रेडेंशियल्स should be checked and authenticity should be checked for authenticity। तो ये है हम लोगों का यूजर स्टोरी और उसका एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया। सो इस चीज को फिलअप करने के लिए हम क्या करेंगे, हम अलग अलग मेथड्स यूज कर सकते हैं। जैसे कि हमने कुछ डिस्क्राइब भी किया कि टी शर्ट साइजिंग या न्यूमेरिकल साइजिंग। इसके अंदर स्टोरी पॉइंट हम 1 to 10 के बीच में देते हैं। एक टी शर्ट साइजिंग होता है जिसके अंदर कंपेयर करते हैं। एक फिबोनाची सीरीज होती है जिसके अंदर एस्टिमेशन फिबोनाची सीरीज की मदद से किया जाता है। तो जैसे थर्ड हम लोगों का, जैसे हम फिबोनाची सीरीज की कंपेयर देखते हैं तो यूजर आईडी हमारे ये है और एस्टिमेटेड स्टोरी पॉइंट हम लोगों ने उसको कितना दिया, 8, 3 और 4। अब देखिए, एक है हम लोगों का स्प्रिंट लेवल एस्टिमेशन। तो स्प्रिंट लेवल एस्टिमेशन के अंदर भी क्या है, इसके अंदर कोशिश करते हैं हम कि उसको स्टोरी पॉइंट को हम डिवाइड कर सके टास्क के अंदर और फिर उस टास्क को करने में हमें कितना टाइम लग रहा है। तो स्टेप फॉर असाइनिंग एस्टिमेटेड आवर्स टू द टास्क, ये है हम लोगों का बेसिक। अब इसके अंदर हम लोग जैसे क्या कर रहे हैं, ये पूरा टास्क एस्टिमेशन कैसे हो रहा है। यूजर आईडी क्या है, यूजर का उसको टास्क आईडी दे देते हैं एक, फिर उसके अकॉर्डिंग हम टास्क का डिस्क्रिप्शन लेते हैं। फिर टास्क की एक्टिविटी जो है क्या है, मतलब किस चीज से रिलेट कर रही है और ये भी क्या है किसको आप असाइन कर रहे हो, ये काम किस किस को असाइन कर रहे हो। फिर उनकी प्रायोरिटी क्या है, अगर हम 1 से लेके 9 तक लोएस्ट टू हाईएस्ट प्रायोरिटी रखते हैं तो उस टास्क को आप क्या प्रायोरिटी देते हो और उसका स्टेटस क्या है पूरा का पूरा, कि वो कंप्लीट हो चुका है या स्टार्ट हुआ है या वो काम चल रहा है। सो उसके अकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं एस्टिमेटेड एफर्ट आवर्स। तो एस्टिमेटेड एफर्ट्स आवर्स उसको कंप्लीट होने में कितने लगेंगे या प्रोग्रेस में तो उसको कितना टाइम लगेगा। तो ये है, इसके बेसिस पे हम लोग क्या कर सकते हैं, उसका टाइम डिसाइड करते हैं। सो हम लोगों ने देखा इसके अंदर एस्टिमेशन के अंदर साइज हम लोग कैसे एस्टिमेट करें, फंक्शन पॉइंट एनालिसिस की मदद से। फिर यूजर स्टोरी पॉइंट की एनालिसिस करते हैं, फिर उसकी मदद से हम क्या करते हैं, टास्क को डिवाइड करते हैं और टाइम भी एस्टिमेट करते हैं। सो ये है हम लोगों का एस्टिमेशन इन अजाइल। So thank you. That's all for today's session. And if you have any query, then please mention in comment box. And this session is powered by Digital Version 2.0 Jyoti Vidyapit Women's University.